So we are starting with this LPP formulation. This is one of the very important questions. This was asked when I was into the final year, and I feel like I was very confident that I know everything about LPP and I'll be able to formulate whatever will be asked in the exam. But since I was not practicing that much questions, and I have not yet seen such kind of questions, then because of that it became very difficult for me to complete this question in my exam. So what I'll do is I'll try to explain you the problems that I faced while solving this question in the university exam. Just give me a second. What is given? A company manufacturing air coolers has at present firm orders for the next 6 months to meet the orders on either regular or overtime basis. Matlab there is a company who is taking orders from some firm, okay, and they have the orders for the next 6 months. They can meet the orders either on regular time or overtime basis. Okay, the order size and the production cost over the next 6 months are as follows. Like in the month one, they already have the order from the firm, and what will be the costing of the order? The number of order that they have is 640. They have for month one, right? And what will be the cost when they do it in regular time production? It was already said they can meet the order either on regular or overtime basis. So when they meet the order on regular time, the cost per unit, okay, it is given out to be 40, and when they meet the order on overtime product basis, the cost per unit is 52 rupees for month one. Similarly, for month two, the order is 660, and what will be the cost? It will be 42 and 50 respectively for regular and overtime. For the third month, the order that they are having from the firm for the next for the third month is 700, and the cost is 41 and 53 respectively. Similarly, for this month, the cost is this and the order is 750. Similarly, for fifth month and sixth month, they have the respective order and their cost in regular and overtime basis. Okay, this is the content that is given. Matlab, from the question, we already know that the company is about to manufacture air coolers, and they already have the orders for the air cooler from the firm for the next 6 months. And what will be the cost in regular? If they produced it in regular time, it will be the cost that is given in the third row. Okay, you can see the third row, and if they are meeting the order on overtime, the cost will be as given in the fourth row. And the number of order is already set. The order that is required to be met is 640. Whether you want to meet it on regular basis or overtime basis, it's your choice, but you have to meet this order. Okay, this is being asked, and they can meet the order for the next 6 months. That is also said. Now, with 100 coolers, okay, in stock at present, the company wishes to have at least 150 air coolers in the stock at the end of 6 months. Now, before they are starting the order, before the commencement of month one, they already have 100 coolers in their stock, and they wish that at the end of the 6 months, at least they should have 150 cooler in the stock. Matlab, it should be more than 50. Okay, basically the stock that they are having right now is 100 cooler, and at the end of the 6 months, just for safety, they need how many air coolers? They need 150 air coolers. Okay, at the end of the 6 months. Now, the regular and the overtime production in each month is not to exceed 600 and 400 units. Now, in any of the month, you cannot produce more than 600. The regular and overtime production is not to exceed 600 units. Matlab, for regular, you cannot exceed 600, and for overtime production or overtime order, you cannot exceed more than 400. Suppose the order is 700. Okay, so how much can you produce in regular? You cannot go beyond 600. Matlab, even if you want to produce the order of 700 in the third month, okay, so the maximum that you can produce in regular time is 600 only. You cannot produce the whole order of 700 in the regular time for the month 3, because the cap limit for regular production is 600 only. So similarly, if you suppose you have produced 600 regular time, so what will remain from this is, out of 700, what will remain is 100. So you can produce 100 orders from overtime. Similarly, if you would have wanted to produce the maximum of the overtime,
For the maximum of the overtime, how much would have been possible? 400. So what would have remained is 300. So you could have produced how many in overtime? You could have produced 300 in overtime, right? So this is the limit. You cannot exceed 600 and 400 in regular and overtime basis, correct? Now, what is given the inventory carrying cost for air cooler is, the inventory carrying cost for air cooler is, one second. Yeah. The inventory carrying cost for air cooler is how much? Rupees 12 per unit per month, right? So what is that saying? Suppose करो मुझे total order बनाना है. If you look at the values, 640 plus 660 plus 700 plus 750 plus 550 plus 650. तो हम में से कोई सोच सकता है ना, सपोज करो पूरा मिला के 5000 हो रहा है, पूरे ऑर्डर मिला के सब मंथ के मिला के कितने हो रहे हैं? 5000 हो रहे हैं. जैसे हम असाइनमेंट्स लिखते हैं, व्हाट डू यू फील कि पूरा एक साथ लिख के छोड़ देता हूँ, बराबर? काय को लास्ट तक मगज मागरी रखने का, पूरा सर को बोलो स्टार्टिंग में दे दे, स्टार्टिंग में दे देंगे तो मैं क्या करूँगा, 5000 की 5000 एक साथ कंप्लीट कर दूंगा, समझ रहे हैं? तो ऐसा अगर आप करोगे, क्या बोल रहा है, अगर आप ऐसा करोगे कि आप 5000 एक साथ बनाने जाओगे, इनिशियल में आप बोलोगे पूरा बना दो, तो आपको पहले मंथ में रिलीज कितना करना है, कितना रिलीज करना है? 640, बराबर. तो व्हाट इज पेंडिंग, मतलब यू विल बी कीपिंग 4260 या 4360 आपके पास एक्स्ट्रा बचा रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं बचा, करेक्ट. अब ये जो बचा रहेगा इसका इन्वेंट्री कॉस्ट है. इन्वेंट्री मतलब स्टोरेज कॉस्ट. स्टोरेज कॉस्ट कितना है एयर कूलर का? ₹12 पर मंथ. मतलब अगर आप इतना एक्स्ट्रा बचाते हो तो पर मंथ आपको 12 रुपीज देना पड़ेगा. तो पहले मंथ में अगर पूरा आपने 5000 बना दिया तो आपको दिस वैल्यू इंटू 12 देना पड़ेगा कि नहीं एक्स्ट्रा. अब नेक्स्ट मंथ में सपोज करो ऑर्डर कितना आ गया, नेक्स्ट मंथ का ऑर्डर कितना आ गया, देखो 660, बराबर. तो इसमें से 660 निकाल दो. 660 अगर हमने निकाल दिया तो कितना बचेगा? 3700, बराबर. तो 3700 इंटू 12 बचेगा या नहीं, बराबर ना? क्योंकि नेक्स्ट मंथ में मुझे फिर से इसका खर्चा, मतलब एक तरीके का आई एम टेलिंग, मुझे रेंट देना पड़ेगा. अगर मैं इतना सारा एयर कूलर बना रहा हूँ तो मुझे उसको स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है, उसका मेंटेनेंस देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी. तो उसका जो कैरिंग कॉस्ट रहेगा वो हर महीने मुझे देता रहना पड़ेगा, जो मेरे पास बचता रहेगा. आई होप यू आर गेटिंग. और वो कितना है? वो कितना है? ₹12 पर यूनिट, ठीक है, ओके, ठीक है. Now give me a second. I'll just take the question again. I think this thing is clear from our end. I'll just enter the pic, don't worry. We have time, don't worry. I thought of taking only one question because this question is very lengthy. We will cover the syllabus of this module at least by tomorrow. Don't worry about it. Where is the document? Give me a second. Okay. What we are basically going to do is we are going to formulate this question. ओके नाउ अब अगर हमको ये क्वेश्चन को फॉर्मुलेट, और एग्जाम में ना अगर गौर करो तो सिर्फ फॉर्मुलेट बोला है. जस्ट लुक एट दिस थिंग, फॉर्मुलेट द एलपीपी मॉडल. इट केम फॉर 10 मार्क्स आई थिंक. या यू कैन सी हाउ मेनी मार्क्स इट वाज. It came for 10 marks and it was only about formulation, nothing more than formulation. So what we will do, सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा हमारे डिसीजन वेरिएबल क्या है. ओके, तो सबसे पहली चीज हमारा क्या रहेगा, वी हैव टू फाइंड व्हाट इज आवर डिसीजन वेरिएबल. ओके, तो अब डिसीजन वेरिएबल क्या है जो मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है. अब मैं क्या मैन्युफैक्चर करने वाला हूँ, एयर कूलर, बराबर. अब एयर कूलर में कितने मैन्युफैक्चर करने वाला हूँ, 640, 660, 700, 750, 550, 650, ये ऑर्डर्स है. बट इसको दो तरीके से मीट करूंगा या नहीं. दो तरीका क्या है, एक है रेगुलर पे और एक है ओवर टाइम पे. तो मैं लिखूंगा लेट x1, x2, x3, x4, x5, x6 be the number of air coolers to be manufactured, correct.
x1 x2 से लेके x3 x6 विद द नंबर ऑफ एयर कूलर्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड ऑन रेगुलर टाइम या रेगुलर बेसिस। ठीक है, तो ये मैं रेगुलर बेसिस पे मैन्युफैक्चर करूंगा। ओके, सिमिलरली मैं क्या लिखूंगा नेक्स्ट, अगर मुझे लिखना है तो लेट y1, अब मुझे पता है मुझे ओवर टाइम में भी कुछ बनाना पड़ेगा और दोनों अलग रह सकता है। दोनों मिला के अगर फर्स्ट मंथ में देखो तो कितना बनाना है 640 मिनिमम। ठीक है, एटलीस्ट मुझे इतना बनाना है क्योंकि इतना तो ऑर्डर मुझे मीट करना है। एटलीस्ट क्यों बोल रहा हूँ आपको आगे समझेगा। ठीक है, तो आप एटमोस्ट बोलो एटलीस्ट, पर मुझे 640 तो बनाना है। तो y1 y2 y3 y4 y5 y6 be number of air coolers, okay, to be manufactured, right, on overtime basis. There are two basis ना, या तो रेगुलर में काम करूंगा या तो ओवर टाइम बेसिस पे काम करूंगा। तो रेगुलर में सपोज करो मैं फर्स्ट मंथ में x1 बना रहा हूँ, कितना बना रहा हूँ फर्स्ट मंथ में x1 बना रहा हूँ, और सेकेंड मंथ में कितना बना रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं x1 बना रहा हूँ, और फर्स्ट मंथ में ओवर टाइम में कितना बना रहा हूँ, y1 बना रहा हूँ। करेक्ट। अब देखो मुझे बोला क्या है, फर्स्ट मंथ में कितना कम से कम बनना चाहिए, द कंपनी शुड हैव, कितना होना चाहिए फर्स्ट मंथ में 640 ऑर्डर तो होना चाहिए बराबर, क्योंकि उतना उसको भेजना है। कम से कम कितना भेजना है 640। तो देखो अगर मैं फर्स्ट मंथ की बात करूं तो मुझे x1 प्लस y1 कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए 640 कम से कम होना चाहिए या नहीं, करेक्ट ना। कितना होना चाहिए 640 कम से कम होना चाहिए। पर कंपनी का पास पहले से कितने कूलर है, कितने कूलर है 100, तो जो स्टॉक में वो मैं यूटिलाइज करूंगा या नहीं। तो x1 प्लस y1 को फर्स्ट मंथ में किसके लिए लिख रहा हूँ, को फर्स्ट मंथ। ओके, तो फर्स्ट मंथ के लिए मुझे क्या कंडीशन मिली कि x1 प्लस y1 प्लस 100 जो पहले से स्टॉक में, दिस इज इन स्टॉक, करेक्ट ना। ये पूरा मिला के कम से कम कितना होना चाहिए 640, कितना होना चाहिए 640। अगर आपने एक्स्ट्रा बना दिया, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर आपने एक्स्ट्रा बना दिया, सपोज करो मैं यहाँ लिखता हूँ, सपोज करो मैं यहाँ एक वेरिएबल डालता हूँ i1, क्या वेरिएबल डाल रहा हूँ i1। सपोज करो आपने x1 बनाया 500, कितना बनाया 500, x y1 बनाया आपने 40, जस्ट टेक अ वैल्यू, ये है 500, ये कितना बनाया 40, और ये कितना है पहले से, कितना है 100, तो मिला के कितना हो रहा है 640। इसकी लिमिट क्या थी याद है, इसकी लिमिट कितनी थी, लिमिट कितनी थी इसकी 600 के ऊपर नहीं जा सकता, और ये 400, तो दोनों लिमिट सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, देखो बराबर। तो दोनों लिमिट सेटिस्फाई हो रही है, जो पहले से स्टॉक में वो, अगर ये है 500 और ये है 40 और 100 पहले से, तो ये कितना हो गया एग्जैक्ट 640 हो गया या नहीं है, ऐड करके देखो कितना हुआ 640। तो 640 इज इक्वल टू 640, तो i1 की वैल्यू क्या रहेगी, क्या रहेगी i1 की वैल्यू, जस्ट थिंक अबाउट इट, लेट मी नो, यू कैन पुट इट इन द चैट ऑल्सो। अगर 640 इक्वल टू 640 हुआ तो i1 क्या होगा, मैंने एक वेरिएबल ले लिया 0, वेरी नाइस, कंफर्म, i1 क्या रहेगा 0। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं अगर मैंने इक्वल बना दिया जितना बोला है, ठीक है, एग्जैक्ट मीट कर दिया, तो i1 क्या हो जाएगा 0। बट अगर मैं सपोज करो इसकी लिमिट है कितनी, पहले मंथ की लिमिट कितनी है 600, सपोज करो मैंने इसमें 600 बना दिया, और पहले मंथ की ओवर टाइम में लिमिट कितनी है 400 बराबर ना, मैंने सपोज करो यहाँ 300 बना दिया, मेरा मन कर रहा था ज्यादा बनाने का, लेबर मेरे पास ज्यादा अवेलेबल थे, तो 400 प्लस 300, और ये कितना है 100 पहले से है, ये तो यूज करना ही पड़ेगा। तो अब ऐड करेंगे तो देखो कितना हो रहा है 1000, कितना हो रहा है 1000, और यहाँ पे कितना है 640, तो दोनों इक्वल नहीं है ना। तो अगर दोनों इक्वल नहीं है तो i1 की कुछ वैल्यू रहेगी कि नहीं, i1 की वैल्यू कितनी रहनी चाहिए, अब कितनी रहनी चाहिए, i1 की वैल्यू कितनी रहनी चाहिए 360। क्यों 360 रहनी चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन क्या बोल रहा है 640 बनाना है, अगर सामने वाले ने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज्यादा बना दिया तो उसको बैलेंस करने के लिए एक इन्वेंट्री रहेगा, क्या रहेगा एक इन्वेंट्री। आई होप यू आर गेटिंग, ठीक है। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि इन्वेंट्री का कंसेप्ट है क्या। ओके, ठीक है। तो अगर आपको इन्वेंट्री में लिखना है, किसमें लिखना है, इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री लिखना है कोई भी चीज, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, आप कोई भी चीज अगर इन्वेंट्री में लिख रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इन्वेंट्री में लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इक्वल टू का इंडिकेशन यूज करोगे। ओके, अगर आप इन्वेंट्री में लिख रहे हो तो कौन सा इंडिकेशन यूज करते हैं, आप इक्वल टू का इंडिकेशन यूज कर सकते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके,
आपको इतना समझ गया तो ये सब समझ गया। दूसरे मेथड्स भी हैं, मैं आपको एक बेसिक मेथड बता रहा हूँ जो आपके दिमाग में डायरेक्टली क्लिक हो जाए कि अच्छा ये चीज है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, नाउ आई विल अगेन राइट इट। 1 second। आई विल अगेन राइट इट फॉर यू। फर्स्ट मंथ में क्या मिल रहा है मुझे? फर्स्ट मंथ में क्या मिल रहा है मुझे? आपने लिखा x1 प्लस y1 plus 100 is equal to 640 plus I1, where I1 is the inventory that is carried out in the first month. It might be zero, it might be zero, it might be even greater than zero, but it will not be negative. Just think about it. कभी negative नहीं होगा क्योंकि मैंने requirement ही ऐसा रखा है। अब अगर मैं सेकेंड मंथ की बात करूँ, फॉर सेकेंड मंथ अगर मैं ऑर्डर लिखता हूँ तो देखिए सेकेंड मंथ में कितना बना रहा हूँ, x2, और कितना बना रहा हूँ, y2, बराबर। और ये मिला के कितना होना चाहिए सेकेंड मंथ में? देखो सेकेंड मंथ में कितना होना चाहिए, 660, बराबर ना? कितना होना चाहिए, 660। और क्या हो सकता है, I2 आ सकता है या नहीं? बट ध्यान दो, ठीक है। अब देखो x2 हो गया, y2 हो गया, 660 हो गया, I2 हो गया, बराबर है। सपोज करो I1 यहाँ से पॉजिटिव आया, हो सकता है ना? अगर जीरो आया तो जीरो, अगर ग्रेटर देन जीरो आया तो उसको मुझे कंसिडर करना पड़ेगा कि नहीं? तो जब अगर ये जीरो भी हो सकता है और ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम माय एंड कि आई पुट I1 हियर, ठीक है। अगर ये जीरो हुआ, क्या हुआ, जीरो हुआ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज करो 660 ऑर्डर चाहिए, कितना चाहिए, 660। इसकी लिमिट कितनी है, 600। सपोज करो यहाँ पे तुमने 300 बना दिया और यहाँ पे लिमिट 400 है, तुमने 340 बना दिया, मिला के कितना हो गया, मिला के कितना हो गया, 660 हो गया या नहीं? तो अगर मिला के 660 हो गया तो I2 क्या हो जाएगा, जीरो। अगर इन्वेंट्री जीरो रहेगा तो I2 जीरो। अगर सपोज करो कुछ इन्वेंट्री उठा के लाए थे तुम, कितना इन्वेंट्री उठा के लाए थे, सपोज करो 100 इन्वेंट्री था, तो I2 की वैल्यू 100 रहनी चाहिए या नहीं? तो ऑटोमेटिकली जो भी I1 वहां से मिलेगा वो दूसरी इक्वेशन में बैलेंस होना चाहिए या नहीं? ओके, इज इट क्लियर? जस्ट लेट मी नो इन द चैट इफ यू आर गेटिंग, let me know in the chat so that I can proceed. It is not about completing, that's why I am asking you. Any problem? Just let me know in the chat, everyone. Only 18 have joined. Any problem? Anyone? Okay, so we will proceed. It will take time, but it's important to give some time at the start of the subject rather than giving this time at the end of the subject. सर इन्वेंट्री कॉस्ट से कॉस्ट बढ़ेगा ना हर टाइम? हाँ बढ़ेगा ना, क्यों नहीं बढ़ेगा? उसी को तो ऑप्टिमाइज करना है। क्या है क्वेश्चन, एलपीपी का मतलब क्या है, ऑप्टिमाइज। तो इन्वेंट्री का खर्चा कम करो। तुम अगर जब ये क्वेश्चन को देखो, एक बात याद रखना, इसमें कितने वेरिएबल है? वेरिएबल देखो 6 वेरिएबल है रेगुलर टाइम में, 6 वेरिएबल है ओवर टाइम में, 6 ठीक है, टोटल 12 वेरिएबल्स है। इक्वेशन कितनी अभी तक तुम्हें पता नहीं, इक्वेशन भी बहुत सारी रहेगी। तो इतने सारे वेरिएबल से इक्वेशन नहीं होती, आपको पता है। इक्वेशन तो डिपेंड करती है कंस्ट्रेंट्स कितने बन रहे हैं, तो हम देखेंगे कितने कंस्ट्रेंट्स है। बट इतना तो श्योर है कि ये ग्राफिकल से नहीं होगा क्योंकि इट इज मोर देन 2 वेरिएबल, करेक्ट। तो आपको पहले ही पता है कि मोर देन 2 वेरिएबल है तो ग्राफिकल से नहीं होगा, तो आपको पता है सिंप्लेक्स यूज करना पड़ेगा। तो बेसिकली इसको सिंप्लेक्स में भी आपको एक्सेल शीट यूज करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये कंपनी की रिक्वायरमेंट है, बड़ा सा क्वेश्चन है, तो आप उसके हिसाब से क्वेश्चन को हमारे क्या करते हैं, एक्सेल में फॉर्मुलेट करके सॉल्व करते हैं। बेसिक मेथड वही रहता है, सिंप्लेक्स, बिग एम, टू फेज, बट यू कांट डू हैंड कैलकुलेशन हियर। So what do you prefer, to have solution for more than 2 variables and for infinite number of equations you prefer to solve it by Excel? तो इन्वेंट्री कॉस्ट कम करना, ऑप्टिमाइज करना, यही हमारा बेसिक कंसेप्ट है। इन्वेंट्री कॉस्ट कोई शौक के लिए हम तो नहीं रख रहे हैं। इन्वेंट्री कॉस्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि हो सकता है मे बी मैन्युफैक्चरर को लग रहा हो फर्स्ट मंथ में बनाने का खर्चा कम है, सेकेंड मंथ में बनाने का, क्योंकि खर्चा भी है ना बेटा। आप जो सोच रहे हो इन्वेंट्री का खर्चा ज्यादा लगेगा, इन्वेंट्री से इंपॉर्टेंट एक और खर्चा, बनाने का भी खर्चा है या नहीं? तो बनाने का खर्चा अगर सपोज करो ज्यादा है इन्वेंट्री से कोई मंथ में, तो बेटर है मैं इन्वेंट्री रखूंगा rather than बनाने से, rather than making that product. If it is better to put it as an inventory, I'll prefer inventory in that month. If it is not better, I will not prefer inventory in that month. That is important. Okay, we have to look at all the cost before proceeding. So I'll just take second month. What is the second month thing like? Second month,
For second month, I'll just write it for you. What will be the condition? X2 regular production, Y2 overtime production plus whatever is remaining from first month will be equal to 660 plus I2. Okay. Now we will go to the which month? We will go to third month. Once we go to the third month, you can see third month में X3 रहेगा production regular time, Y3 overtime plus अब क्या बचेगा? I1 भूल जाओ. I1 की वैल्यू ऑटोमेटिकली ये लेकर आएगा. I hope you're getting. अब आपको I1 वापस से नहीं डालना, आपको सिर्फ क्या डालना? I2. समझ रहा है? जो भी I1 की वैल्यू ऑटोमेटिकली I2 में इंक्लूडेड रहेगी, जो भी इन्वेंट्री का खर्चा है, विल बी इक्वल टू 700 प्लस I3, right? Now what we can do for the fourth month? What will be the value for the fourth month? If you are taking it for fourth month, this will be X4 plus Y4 plus I3 is equal to, what is that value? 750. Okay. Okay. Now next क्या रहेगा वो भी लिख देता हूँ 550. और लास्ट में क्या रहेगा वो बाद में लिखते हैं, सिर्फ देख के ले लो 650 है. तो मैं लिख रहा हूँ फिफ्थ मंथ के लिए. बराबर. फिफ्थ मंथ के लिए जब मैं लिखूंगा तो फिफ्थ मंथ के लिए क्या रहेगा? X5 प्लस Y5 प्लस I4. ओके. और सिक्स्थ मंथ के लिए जब मैं लिखूंगा, प्लीज ध्यान देना, सिक्स्थ मंथ के लिए क्या रहेगा? कोई बता सकता है? X6 प्लस Y6 plus I5. Very nice. Someone has put something in the chat. सर इन्वेंट्री से कॉस्ट बढ़ेगा ना हर टाइम लेंगे तो? कहाँ 150 ले रहे हैं? मैं नहीं ले रहा 150. मैं क्या बोल रहा हूँ? तुमको नहीं पता बढ़ेगा कि घटेगा, तुम बात ही नहीं समझ रहे. किसने बोला आई एम टेकिंग 150 एक्स्ट्रा? I need to have 150 cooler at the end of the 6th month. Who told I am taking 150? Who told? I am not taking 150. I am formulating a question. I hope you're getting. I am formulating a question. Just look at this last equation. X6 plus Y6 plus I5 is equal to how much? How much was it required? 650. बराबर. ठीक है. प्लस क्या रहेगा? I6. बट इसमें क्या बोला है उसने? मुझे कितना एक्स्ट्रा चाहिए? 150 चाहिए. किसने बोला मेरी I1 की वैल्यू 0 से ज्यादा रहेगी? सपोज करो I1 0 है, I2 0 है, I3 0 है, I4 0 है, I5 0 है. तो जब सब 0 रहेगा तो I6 क्या रहेगा? I6 क्या रहेगा? डिपेंड करेगा ना. I6 किस पे डिपेंड करेगा? X6 और Y6 पे. तो X6 और Y6 मिला के 650 के ऊपर देना चाहिए या नहीं? तो मुझे 150 यहाँ लिखना पड़ेगा. Who told that I am going to take inventory in the all month? I am not going to take it. I am taking all to be 0. How can you know? Without formulating, how can you know that I am actually taking inventory to be more than 0? It might be equal to 0. It might be greater than 0. How can we comment that it is always going to be greater than 0? We actually don't know this thing. That is what is required from us. We need to tell them कि इतना ही बनाओ पहले मंथ में X1 और Y1 में, और इन्वेंट्री मत रखो. और या बोल सकता है इतना इन्वेंट्री रख लो, ठीक है, ताकि आप फाइनली जब आप ऑर्डर कंप्लीट करोगे तो कितना ज्यादा रहना चाहिए? जब आप ऑर्डर कंप्लीट करोगे तो कितना ज्यादा रहना चाहिए? 150 ऊपर रहना ही चाहिए. आई होप यू आर गेटिंग. कितना ऊपर रहना चाहिए? 150. अब सपोज करो इसने यहाँ पर बनाया 100, यहाँ पर बनाया 400, तो 100 और 400 कितना हो गया? 100 और 400 कितना हो गया? 500. और सपोज करो उसको इन्वेंट्री I5 मिला है, I5 मिला है, सबसे बचा हुआ कितना मिला है? सपोज करो 500 मिला है. कितना मिला है? 500. तो कितना हो गया मिला के? कितना हो गया मिला के? 1000. बराबर ना. तो ये 1000 हो गया. बट ये यहाँ पर कितना है? 650. कितना है ये? 650. ये कितना है? कितना है ये? 150. बराबर. तो इसकी वैल्यू कितनी रहनी चाहिए? अगर टोटल इज लेफ्ट साइड इट इज कमिंग आउट टू बी 1000 एंड दिस इज 800, करेक्ट, एडिशन, तो दिस विल बी हाउ मच? 200, करेक्ट. तो इट इज सेइंग यू शुड हैव एट लीस्ट, कितना बोल रहा है? At least 150. You can even have more than 150 if it is formulating in a more precise way. If you are formulating the LPP model in a way that your cost is optimized, then you can even have more than 150. I6 नहीं रहेगा ना सर? क्यों नहीं रहेगा? क्यों नहीं रहेगा I6? किसने बोला I6 नहीं रहेगा? क्या लास्ट मंथ का इन्वेंट्री खर्चा नहीं रहेगा? अगर मुझे एक मंथ भी एक्स्ट्रा रखना है
अगर मुझे एक मंथ भी एक्स्ट्रा रखना है तो एक मंथ, सपोज करो 6th मंथ में मैंने 800 रिक्वायर्ड था और मैंने 200 पहले से ऊपर बना के रखा है, या सपोज करो 200 नहीं बनाया मैंने, सपोज करो आई5 की वैल्यू 0 ही थी, तुमको नहीं जम रहा, आई5 की वैल्यू सपोज करो 0 थी, ये मैंने 500 बना दिया, और ये सपोज करो मैंने लिमिट कितनी है 400, मैंने यहाँ 400 बना दिया, तो कितना हो गया 900, कितना रिक्वायर्ड था 650 प्लस 150 800, तो 100 एक्स्ट्रा बना रहा हूँ या नहीं, तो 100 जब मैं एक्स्ट्रा बना रहा हूँ तो इंटू 12 रुपीज एक मंथ का तो जाएगा ना, कम से कम एक मंथ का एटलीस्ट 12 रुपीज जाएगा या नहीं, तो दैट विल बी कैरिड, राइट। ओके ओके, so what I'll do now is, I think you all have understood something about this question, that you have got some kinds of equation, right? Now, there is something more to this question. What is being said? You cannot exceed regular production. Just look at this thing. What is being said? You cannot exceed regular production by 600 and 400 in regular and overtime. तो अब रेगुलर के वेरिएबल्स क्या क्या थे हर मंथ के? देखो, x1 वेरिएबल था रेगुलर में, x2 था, x3 था, x4 था, x5 था, x6 था, और आपको पता है हर मंथ में कितना, हर मंथ में यू कैन नॉट एक्सीड, मतलब इट शुड बी एट मोस्ट कितना 600, तो x1 x2 x3 x4 x5 and x6 all should be at least, sorry, at most or should not exceed 600. Similarly overtime के वेरिएबल क्या है, y1 y2 y3 y4 y5 y6, करेक्ट, तो दिस शुड नॉट एक्सीड हाउ मच, कितना नहीं एक्सीड होना चाहिए 400, अगर उससे कम में कर रहे हो कम में करो, ज्यादा में कर रहे हो ज्यादा में करो, बट ज्यादा में नहीं कर सकते, सॉरी, इक्वल टू करो या कम में करो, बट इट शुड नॉट एक्सीड, इट शुड नॉट एक्सीड 400। तो देखो कितनी इक्वेशंस बन गई यहाँ पर, 6 इक्वेशंस, ये बराबर 6 इक्वेशंस, ये इक्वेशंस है ना ये कंस्ट्रेंट, और पहले 6 इक्वेशंस थे या नहीं ऑर्डर के, सॉरी ऑर्डर के 6 इक्वेशंस थे या नहीं, तो टोटल इक्वेशंस कितने हो गए, टोटल इक्वेशन कितने हो गए बेटा, कितने हो गए टोटल इक्वेशन, 18 इक्वेशंस हो गए, कितने हो गए 18 इक्वेशन, और 6 इक्वेशन है जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन, क्या बोलते हैं, एयर कूलर प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग cannot be negative, right? It will always be non-negative. So x1 x2 x3 x4 x5 x6 all should be greater than equal to 0. Similarly y1 y2 y3 y4 y5 y6 all should be greater than equal to 0. This is called as, these two things are called as non-negative restriction, right? Right or not? So we have got 18 constraint equation, 12 non-negativity restriction, and after doing all this thing, what do we need to do? We need to write the objective function. हमको क्या लिखना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना है। अब देखो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है, कंपनी को एयर कूलर मैन्युफैक्चर करना है, कॉस्ट दिया हुआ है नहीं, इट इज क्लियरली मेंशन्ड कॉस्ट, तो कॉस्ट है तो कंपनी का काम क्या रहेगा, मिनिमाइज द कॉस्ट, it is not said whether you have to minimize or maximize, but you know since the company is going to manufacture the oil cooler, they should minimize the cost of the air cooler, matlab they are paying in regular and overtime basis. Just look at this question, I'll just drag this question down, 1 second, okay, 1 second, just give me a second. One second. It would have been better if I took that question from that side on, but it's okay. We have time, yeah. We are not here. Again, I am saying we are not just to complete the system. If it would have been about completion, I would have completed it by some simpler question जो एग्जाम में पूछता है या जिससे आपका दिमाग खुलता है, वो पढ़ाने में मतलब है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पे देखते हैं, जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन, व्हाट इज बीइंग सेड, वी नीड टू see, we need to formulate, but we know since this is formulation, but it is all about cost, and company wants to minimize the cost, correct? So if they want to minimize the cost, the z should be about minimize z. Okay, now what is the cost for the first month, 40 rupees,
in regular, and how many are you going to manufacture as per your decision variable? You are going to manufacture x1, तो 40 into x1 रहेगा, यानी फर्स्ट मंथ का कॉस्ट, करेक्ट ना? फर्स्ट मंथ का कॉस्ट कितना रहेगा? 40 x1 प्लस क्या रहेगा? अगर पूरा मैं कॉस्ट देखूं तो सेकेंड मंथ का रेगुलर में कॉस्ट कितना रहेगा? 42 x2 प्लस 41 x3 प्लस 45 x4 प्लस हाउ मच? 39 x5 plus 40 x6, correct? Plus this will add 52 y1. You can see the cost is increasing as per the table. As per the regular time से ज़्यादा खर्चा कहाँ पड़ेगा? ओवर टाइम में पड़ेगा, ठीक है? तो 50 y2 plus 53 y3 plus how much? 50 y4 plus 45 y5 plus 43 y6, करेक्ट? प्लस कुछ आएगा कि नहीं? इन्वेंट्री. क्या आएगा? इन्वेंट्री. अभी मुझे बताओ पहले मंथ में आप कितना एक्स्ट्रा बना रहे थे? आई एम जस्ट अनम्यूटिंग यू. एज पर योर टेबल, हाउ मच एक्स्ट्रा आर यू मेकिंग? वेरिएबल में बताओ, हाउ मच एक्स्ट्रा आर यू मेकिंग इन फर्स्ट मंथ? व्हाट इज दैट वेरिएबल? I1. वेरी नाइस. विल दैट I1 बी कैरिड इन द नेक्स्ट मंथ? Yes. Yes, sir. बट वो जो I1 जो नेक्स्ट मंथ में कैरी होगा उसका नाम बदल के I2 हो जाएगा या नहीं? हाँ. बराबर ना? I1 सपोज करो पहले मंथ में 12 रुपीज लगाया, नहीं, 12 इंटू I1 हो गया, करेक्ट? अब तुम्हें बार बार 12 इंटू I1 6 महीने तक नहीं लिखना है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में जो रहेगा ना, I1 की वैल्यू किस में चली गई? I2 में चली गई. तो क्या आ जाएगा? 12 इंटू I2, करेक्ट? थर्ड मंथ में I1 I2 की वैल्यू मिला के किस में चली गई? I3 में. तो क्या आएगा? 12 इंटू I3. सिमिलरली 12 इंटू I4 प्लस 12 इंटू I5 plus 12 into how much? I6. I hope you understood this thing. Done? Correct? Now, before I1 की जगह तुम और भी वेरिएबल दे सकते थे. मैंने I1 दिया ताकि इन्वेंट्री का कंसेप्ट ध्यान में रहे. Where all the variables तो तुमने लिख दिया, बट ये भी लिखना पड़ेगा ना. I1, I2, I3, I4, I5, I6. These are also variables. This should be greater than equal to 0. You have to mention it. It will be greater than, it will always be greater than. Even if you don't mention, you are sure that this will be greater than, क्योंकि इसका जो कॉम्बिनेशन आ रहा है वो किससे आ रहा है? x1 y1 और जो भी इन्वेंट्री बचा हुआ उससे आ रहा है, करेक्ट? तो दिस विल बी ग्रेटर देन. डन?